Hello. Good evening, everyone. Namaskar. Hello. Saturday evening special session में आप सबका स्वागत है. I want to welcome all of you for this special session which we are conducting today, where we are going to talk about so many things related to trading. But before I call my guests, because today we are having power pack session with four add-on guests. So I'll be there, and there are four people with very diversified background doing some really interesting work in markets. Most of them have been part of my face-to-face series, so you have already learned from them. And follow on यहाँ से और भी learning मिलने वाली है. हम लोग इंग्लिश में रखेंगे, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी रखेंगे, ताकि जिसको जो जिस लैंग्वेज में कंफर्ट हो उस लैंग्वेज में वो देख सकते हैं. And before I start this session, because the idea is to also ask few questions about trading, and also talk about the Techno-Funda conference, which is coming from StockEdge Club users. It's a free conference, online conference for StockEdge Club members. उसके बारे में बात करेंगे बाद में. But Abhi, I want to invite all four guests here so that you know exactly whom we are talking about. So let me invite all four of them. Here we are. So no order of preference, just in the sequence of the photo which I can see. So Chetan Bhai is there, the options king. Mukta is there. She's amazing with pointed figure and she does lovely work. Abhijit Paul, Abhijit Da, I call him Da because he is the real Dada. And Shikant sir, the guy, the man behind the lovely Kotak Securities research, which you guys see, and I'm sure people are finding value in all the research. So thank you all four of you for joining this evening. Thank you, sir. Thank you. We are excited. Thank you. It's my pleasure to have all four of you. और बहुत बातें करनी है. काफी इंटरेक्शन चलेगा. मार्केट की बात करेंगे, ट्रेडिंग की बात करेंगे. बट इसके पहले मुझे एक बात बताइए, मार्क मेनेवरी का फेस टू फेस देखा कि नहीं आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल सर, इट वाज सो एनलाइटनिंग एंड कभी कभी मिलता है मौका ऐसे स्टॉलवर्स को सुनने का, आपकी वजह से मिल गया. इट वाज रियली वेरी नाइस. एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये रिकॉर्ड करके. आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल हु आर हियरिंग दिस और नॉट, बट मैं पिछले 1.5 साल से लगा हुआ था इसके पीछे, बट फाइनली गॉट एन अपॉर्चुनिटी. तो मैं तो अपने लाइफ का एक माइलस्टोन इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि तो सीढ़ी होती है ना, तो मैं एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया बिकॉज आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पेंडिंग 60 minutes with a guy like him who is world's #1 trader right now. It's so amazing feeling. और अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो, I'm telling you, you're going to miss terribly something because उनकी एक एक बात में ना हीरा लगा हुआ था. So when we recorded this, I recorded this early morning 6 o'clock, and pardon me, मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है कि मैं इसके बारे में थोड़ा बात करूं before I go to our agenda. तो सुबह 6 बजे हमने रिकॉर्ड किया. मैं था और अश्विन थे, and after we completed the recording, 7 o'clock 7:15 तक रिकॉर्डिंग हुआ. उसके बाद मैं और अश्विन एक दूसरे को देख रहे हैं और ऑनलाइन में वी वर टॉकिंग कि यार ये क्या कंटेंट मिल गया हमको, ये क्या नॉलेज मिल गई, बिकॉज वी वर लिटरली आउट ऑफ आवर सेंसेस व्हेन वी वर आस्किंग क्वेश्चंस. ऑल्दो यूएस वालों का खास बात क्या होती है सर, बहुत पर्टिकुलर होते हैं लोग कि क्या क्वेश्चन पूछना है, ये पूछना है कि नहीं पूछना है, इसका क्या जवाब होगा. कुछ क्वेश्चंस उनके ऑलरेडी कहीं किसी वीडियो में होंगे तो वो उस क्वेश्चन को आंसर नहीं करेंगे. वो बोलेंगे अरे मैंने इस वीडियो में इसका आंसर कर दिया है तो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा. So a lot of people are saying this कि सर आपने जो फैसिलिटी है उसको यूटिलाइज नहीं किया ठीक से, you should have asked more generic questions. तो मैं ये बोलना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों से कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिलेक्टिव थे and it was as per his requirement. So don't जो मिला उसी से खुश रहो. और आप लोगों में से किसी ने अगर नहीं देखा हो तो प्लीज देखिएगा जरूर, ऑल फोर ऑफ यू. चलिए एजेंडा में आते हैं. बहुत सारी बातें करनी है. एंड one thing which I want to inform everyone that all four of them are part of our StockEdge Club. Constant basis पे उनकी तरफ से useful learning as well as stock ideas input आते रहते हैं. They have been doing phenomenally work. And StockEdge Club member लोग के लिए हमने एक Techno-Funda Summit create किया है 2 दिन का online. It's free of cost for them. शनिवार और रविवार, रविवार और सोमवार. रविवार को हम फंडामेंटल्स की बात करने वाले हैं और सोमवार को हम ट्रेडिंग की बात करेंगे. लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करके हम लोग और ट्रेडिंग को सीखेंगे. तो गाइज आई हैव फ्यू क्वेश्चंस और मैं अपने क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ. एज यूजुअल आई एम सो यूज्ड टू इट.
एंड देन आज हम लोग है ना कुछ ऑडियंस के भी क्वेश्चंस लेंगे बिकॉज इट्स सच अ लवली पैनल वी हैव, सो आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो मेरे शुरुआत के कुछ क्वेश्चन जो कि लोग मुझे अभी बहुत पूछ रहे हैं और मेरे पास उसका आंसर मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा आंसर नहीं दे पा रहा हूँ उसका, कि इतने सारे स्टॉक है जिसमें अभी काम करने का मौका मिल रहा है, खासकर मोमेंटम मार्केट में देयर इज नो लिमिट टू नंबर ऑफ स्टॉक्स वेयर यू कैन ट्रेड। हाउ डू यू सिलेक्ट 10 में से 2 स्टॉक, वो कैसे आइडेंटिफाई करे जिसमें मुझे काम करना चाहिए? एंड आई वांट शिकांत जी टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज ही हैज सच अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ मार्केट। पहले उनसे लेंगे, फिर उसके बाद अभिजीत दा आप पे जाएंगे। शिकांत जी, हाउ टू सिलेक्ट 2 स्टॉक आउट ऑफ दोस 10 स्टॉक्स? इतना मोमेंटम है, इतना एक्टिविटी है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट विवेक जी, अगर हम जितने भी हमारे सेमिनार्स करते हैं या वेबिनार भी करते हैं, सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन अगर आता है, या तो कोई, मैं बोलता हूँ कि ऑलवेज ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हर एक इन्वेस्टर और हर एक ट्रेडर के माइंड में होता है, और ये पूछते हैं, और मुझे लगता है कि इसे फॉलो करना उतना ही एक्चुअली ज़रूरी होता है। लोग, मैंने देखा है कि कई बार आई हमारे थिंक जो, कुछ नेट का प्रॉब्लम है। इज इट माय प्रॉब्लम और नो? आई थिंक शिकांत जी का नेट वेट अटक गया है। वेट, इज इट ओके? So let us then Abhijit, I think you can take it over, and then when we connect back again, we will go back to Shikanji. No, I got it. Shikanji, अब हाँ, अब आ गए हैं। Yeah, please इज इट continue. ओके? ओके, Yeah, better. बिल्कुल, सॉरी। तो देखिए विवेक जी, ये जो क्वेश्चन है ये सभी के लिए काफ़ी, जितने हमने वेबिनार किए, जितने सेमिनार्स किए हैं, कई बार हमने देखा है कि हमारे क्लाइंट्स, हमारे इन्वेस्टर्स इसी क्वेश्चंस पे आके रुकते हैं, और ये क्वेश्चंस, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर डिटेल्ड आंसर चाहते हैं। यस, नो डाउट, अगर आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर्स हो, आपके लिए स्टॉक चूज करना या एलिमिनेट करना, ये मैंने देखा है कि इक्वली सेम है। कई साल निकालने के बाद समझ में आता है कि ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स हो, अगर आप No, फंडामेंटली I देख रहे think हो, शिकांत जी का इंटरनेट आज हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा है. So I will connect with him offline. In the meanwhile, Abhijit da, please take it over. And what's your answer to this question? It's a $1 billion question, by the way. Huh? All right, I'll try and do justice to this. Well, see, this is as difficult as selecting the stock in the first place. तो सोचिए कि मैं अपना मार्केट रिसर्च होमवर्क स्कैन करके 10 स्टॉक्स निकालता हूँ, उस 10 में से आई एम गोइंग टू टेक अ ट्रेड ऑन 2 or 3 मैक्सिमम। एंड जनरली क्या होता है, जिस स्टॉक में हम लोग ट्रेड लेते हैं वो चलता नहीं है, और जिसको छोड़ दिया वो चलना चालू कर देता है। दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग दैट गोस थ्रू। So if I have 10 stocks and I have to choose 2 or 3, I think couple of ways that I can do. Number one, liquidity. इसका number of buyers and sellers more है, number of trades बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे price discovery बहुत अच्छा होगा। You trade a bank nifty and you trade something like a yes bank, you will see the difference in terms of the bid and ask spread and in terms of the number of trades happening. So जिसका liquidity ज़्यादा है उसको sort कीजिए। एंड उसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि टॉप 5-6 स्टॉक्स में सब अच्छे स्टॉक्स है, रिलायंस, टाटा स्टील, एसबीआई, ऑल ऑफ देम आर देयर, इस 5 में से भी मुझे 2 निकालने हैं, देन आई वुड से दैट आफ्टर लिक्विडिटी यू कैन गो विद वोलेटिलिटी क्रंच। वोलेटिलिटी क्रंच मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पे वो स्टॉक का डेली रेंज बहुत हद तक क्रंच्ड हो चुका है या कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, मतलब वो निकलने वाला है, फटने वाला है। सो इट्स गोइंग टू गिव अस अ रेंज एक्सपेंशन। And I can think this is the way that I do it, and I think it makes sense. Solution to this is, ये करने के बाद ऐसा भी आपके साथ होगा कि जिस पे आपने हाथ दिया वो चला नहीं या स्टॉक आउट हो गया, और जिसको छोड़ दिया वो चल गया, ये भी होगा आपके साथ। And if this disappoints you too much, अरे धत तेरी ये नहीं चला and stuff like that, then try and take all the trades or forget the stocks and just stick to bank nifty, honestly, that's it. Okay. और कुछ चीजें तो ऐसी माननी पड़ेगी ना अभिजीत दा की, ठीक है, मतलब कुछ तो ऊपर वाले पे भी छोड़ो, नहीं चले तो नहीं चला। होता है कई बार ऐसा टाइम आता है कि एक हफ्ते तक जो जिसमें हाथ डाल रहे हैं वो चल ही नहीं रहा है, तो मान लेते हैं इट वाज अ बैड वीक फॉर अस, मूव ऑन। Yes, and that can only come with a certain degree of maturity. ये immediately जब हम लोग train करते हैं तो people and they start to trade, वो नहीं दिखता है। The emotions are very high. जब पैसा कमाते भी है, then also the emotions are very high. मुझे आज भी याद है 2005 I made my first trade Nifty short, 700 रुपए का profit था। मैं तो I was just jumping. I was like ecstatic. One lot Nifty short. Nevertheless,
but that maturity needs to be there. कि ठीक है नहीं चला next time देख लेंगे, but that can come only with time and experience. वैसे अभिजीत दा एक छोटी सी बात है, इमोशनल मैच्योरिटी लाने के और भी तरीके होते हैं, जैसे हमारे आपके जो गुरुजी है जो आपके पीछे बैठे हैं कॉमन गुरुजी, तो काफी हद तक उनका भी रोल रहा है हमारे दोनों में मैच्योरिटी लाने का. Yes, but वो लेने वाले पे भी डिपेंड करता है. By the way, that's a sketch done by my wife. It's a personal sketch from the family. So वो लेने वाले पे भी डिपेंड करता है. You hear the same thing, and 10 people will make 10 different ways or 2-3 different ways, and few will walk the path, few will not walk the path. Yeah. So it मतलब generalize करना बहुत बहुत कुछ मुश्किल है. But yes, I think what you can do is do your best. बाकी market पे छोड़ दीजिए. सही है, very practical thought. Shikant ji, coming back to you, can you continue with your answer? At least अभी internet stable होना चाहिए. Yes, great. In fact, sir, see, like most of the time I see that it is very difficult for investor or I think Shikant ji, today is one of those days when the kainat is not supporting your presence. Can So I exit एक and बार again move on re-enter? करता हूँ because we have limitation of time. So I want to go to Vivek the second question. And Shikant ji, I think you need to check अगर कोई और इंटरनेट अगर कर Can सकते I हैं हम leave लोग, and again re-enter? या बेटर वो रहेगा, एक बार आप वापस आइए. तब तक मैं मुक्ता जी के पास जाता हूँ because I did face to face with Mukta and I realized one very strong point about her कि इनका प्रिपरेशन बहुत सटैक रहता है, शायद इसीलिए वो इतने अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाती है, शायद टाइम पे एग्जिट कर पाती है. सो मुक्ता, फॉर अ ट्रेडर हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर टू प्रिपेयर. और ये जो मार्केट सिचुएशंस चेंजेस होते हैं ना हर महीने, अभी तो इतने फ्रिक्वेंट हो गए, हर 15 दिन में मार्केट सिचुएशन चेंज हो रहा है, तो प्रिपरेशन में भी कुछ चेंजेस चाहिए ना? आपका जो प्रिपरेशन है वो स्टैटिक रहने दो, मार्केट चेंज होता रहेगा, डजंट मैटर. So basically, weekend I utilize for my homework. So I have a slot dedicated on a weekend, maybe a Saturday or Sunday, as per my availability and time availability. So give 2 hours non-stop look at all the Nifty charts, what market has done on the last week, whole of the week. Try to understand what the trend is. Look at the open interest. Look at where the resistance is and where the supports for particular stock is. That is one thing I do. Secondly, I do relative strength analysis, wherein I analyze Nifty against the sectors. So, which sectors are outperforming, which sectors are underperforming is one of my major homework. So, once I know which sectors are outperforming and the next week market tends to be bullish or on a bullish days, I would try to pick stocks which are outperformers from that sector. Okay. So, like if I have a PSU bank which is showing strength in this particular week, that PSU bank sector is picking up. So, SBI is my outperformer there. I will try to find where the stock has resistance, where the stock has support, and try to pick trade as per the support resistance and as per the outperformers. If the week is bearish, like if the Monday opens with a bearish note and we have a little bit of weakness in the market, so I will try to pick stocks which are underperformers from the underperforming sectors. So something like IT, which was underperforming for the past few weeks. So I will have my IT stocks and which are the underperformers from the IT stock again. So they will break down first when the market is bearish. So that Yeah. is the what you say the premise behind this study. And thirdly, when I pick my stocks, point and figure gives me a liberty to pick some affordable stop losses. So point and figure basically is a very objective system. If it's a buy or a sell, there is no gray area here. So something which gives me a double top signal is a buy, a double bottom sell is a sell for me. So I know the buy and the sell level beforehand in right on a weekend where the levels are. So I have my levels also ready. Where my stocks are ready, my entry levels are also ready for the bullish and the bearish Yeah. dips. And that's how the whole thing is lined up and the study is ready.
तो मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होता है, जैसी सिनेरियो होती है, वैसे स्टॉक्स पिक किए जाते हैं। But Mukta, my point is कि क्या ये thought process change होता है, market situation change होता है तो, या irrespective of what market does, you follow the same routine? ओके, सो द रूटीन इज सेम। थॉट प्रोसेस जब सिर्फ वही पोजीशन साइजिंग एक तो पे चेंज होता है कि अगर मार्केट इज वेरी वोलेटाइल, आई विल कीप माय पोजीशंस लिमिटेड इन एफएनओ सेक्टर। सो यू नो, अगर इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन माय फेवर तो मुझे लॉस भी कम होना चाहिए। अगर मेरी हिसाब से मार्केट नहीं चल रही है तो ठीक है, मैं आई विल टेक माय एग्जिट, बिकॉज एनी टाइम व्हेन आई टेक अ ट्रेड, when I know my entry, I know also my exit, which is the most important thing, and people forget about exit, and that's where, you know, we lose maximum of our capital. So my entry and exits are ready, and yeah, I take my stop loss if it is my market is not respecting my position. I take it, it's okay, because my position sizing is such that my capital is not damaged, you know that. So I'm even if there is a stop loss, I'm ready for the next trade, I'm not giving it up. So that is how I manage it. Beautiful concept. I think this is a very important key takeaway कि पोजीशन साइजिंग से मार्केट का सिनेरियो को जज करिए या उसको एडजस्ट करिए. इट्स अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस. आई थिंक प्रिपरेशन जो है वो तो वही रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हम कर नहीं सकते, अपने डायनेमिज्म नहीं ला सकते. बिफोर आई गो टू श्रीकांत जी अगेन, चेतन भाई, I have to ask you this because you are master of trading psychology and you know exactly what to do and what not to do. So tell me, जो मैंने क्वेश्चन मुक्ता जी से पूछा प्रिपरेशन को लेके, अब मैं आपसे स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या डिफरेंट मार्केट कंडीशन में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज करनी चाहिए, या सेम 3-4 स्ट्रैटेजी को हर मार्केट में चलाओ, कभी कोई अच्छा करेगा कभी कोई खराब करेगा, बट यू शुड नॉट बी सो डायनामिक विथ योर स्ट्रैटेजी सिलेक्शन एज पर द मार्केट स्ट्रैटेजी, मार्केट कंडीशंस. राइट विवेक भाई, एज यू राइटली सेड, बेसिकली क्या होते हैं मार्केट्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट गेम्स चल रहे होते हैं. आपने जैसे अभी बोला कि डिफरेंट सिनेरियोज आ गया, तो आफ्टर द वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, हमने क्या देखा कि सर्टन सेक्टर्स जैसे कैपिटल गुड्स है, पेपर्स है, वी सॉ मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस. कारण क्या था कि एनर्जी कॉस्ट यूरोप एंड बाकी सब जगह बहुत हाई हो गए थे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन बंद हो गया. सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया बिकेम वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स, क्योंकि इंडिया में एनर्जी कॉस्ट अभी भी लो है. सो यहाँ पे आपका फंडामेंटल फ्लो आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सक्सीड एज अ ट्रेडर. सो फंडामेंटल फ्लो क्या बताता है कि कौन से सेक्टर में मेरे को गेन हो सकता है, कौन सा सेक्टर मेरे लिए अभी नेगेटिव है. सो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा विवेक भाई, जब से वॉर चालू हुआ है उस दिन से आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, एग्जैक्टली फ्रॉम दैट डे, राइट. सो ये मेरे को अब समझ आ गया कि यूरोप एंड अमेरिका में मोस्ट ऑफ द मनी, द पीपल आउट देयर आर स्ट्रगलिंग, और वो पैसा चला जा रहा है आपके नॉर्मल कंजम्पशन में, वो कुछ पैसा बच नहीं रहा है. सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है बिफोर अ ट्रेडिंग प्लान, ये फंडामेंटल आपको कहाँ लगाना है वो मार्केट के साथ आपको अब टेस्ट करना पड़ेगा. क्या मेरी सोच मार्केट की सोच के साथ मैच कर रही है? इज माई इनपुट विच आई हैव टेकन इनटू कैलकुलेशन मैचिंग विद द मार्केट व्यू? So you will keep on changing. So you will keep on changing that. तो जैसे गलत है तो मार्केट मेरे को बता देगा. तो जैसे आपको एक स्ट्रैटेजी, सपोज ऑप्शंस पे आपका एक ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी है जो आप हर साल कर रहे हैं और उसमें एक सर्टेन आरओई जनरेट कर रहे हैं. अभी मार्केट सिनेरियो चेंज हो गया बिकॉज ऑफ वॉर, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर बी द फंडामेंटल रीजन. करेक्ट. वो आप अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस करेंगे बिकॉज ऑफ दैट फंडामेंटल शिफ्ट. Because that strategy is nothing to do with the market condition, is to do with the eating of theta. So naturally प्लस माइनस वहां पे वो मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा. बट इन जनरल अगर मैं कोई स्टॉक सिलेक्शन या मैं कोई पर्टिकुलर डायरेक्शनल ट्रेड में जा रहा हूँ इन द मार्केट, तो वहां पे वो चेंजेस मेरे को इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे. तो मैं जस्ट 2-3 चेंजेस आपको बता दे रहा हूँ विवेक भाई, जो बहुत हेल्पफुल रहेंगे फॉर द पीपल.
The markets are in a broader range, but there has been erratic gap ups and gap downs almost twice or thrice a week. So there are erratic gap ups and gap downs, but एक broader range में है. And there has been clearly money flowing into sectors and money flowing out from sectors. ऐसा मैंने अपने 16 साल के करियर में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ. ऐसा मैंने नहीं देखा, right? Because whatever we say, having seen it and said it and done, one odd sector outperforms. But here we have pockets of sector which are near to the 52-week highs and pockets of sectors near to the 52-week lows. But the broader market is in a range. अब मेरे को कैसे खेलना है वो बहुत क्रिटिकल है. सेकेंड फैक्टर जो आप डिस्कस करते हो, मैक्रो फंडामेंटल्स, जो प्लानिंग में जो प्लान में रखा है, अगर आपने नोटिस किया होगा 2-3 दिन या 10 दिन के अंदर काफी मैक्रो फंडामेंटल्स चेंज हो गए. आपका रुपया 80 के ऊपर चला गया, 82 के ऊपर, राइट. सो 82 आपका 10 ईयर जी से जो 7.12 था 7.5 के आसपास आ गया. सो आपके मैक्रोज ऑल ऑफ अ सडन इम्पैक्टफुल आ जा रहे हैं. और कल अगर आपने नोटिस किया होगा कि क्रूड ने ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया. सो अभी मैं मंडी के लिए अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मेरे लिए फर्स्ट नेगेटिव आ रहा है बैंक्स. और मैंने बैंक्स का जो स्टडी किया, मेरे पास फर्स्ट नेगेटिव आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो आपका अगर स्टॉक स्पेसिफिक काम कर रहे हो तो बहुत टॉप डाउन अप्रोच है, उसमें फंडामेंटल शिफ्ट को हमको ध्यान रखना है. और अगर मेरा स्ट्रेटजी में ऑब्जेक्टिव इज थीटा खाना या कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटजी है तो उसका ऑब्जेक्टिव अगर कुछ और है तो अकॉर्डिंगली आप अपना स्ट्रेटजी को एडजस्ट करेंगे. करेक्ट. सो विवेक भाई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज. वन इज अ मैकेनिकल वन. अब मैकेनिकल स्ट्रेटजी में आप क्या करते हो कि आपको पता है कि प्रीवियसली इस स्ट्रेटजी का ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेटजी इसने पहले परफॉर्मेंस में ऐसे परफॉर्म किया है. सो मैं उसका इनपुट जब तक मेरे बहुत बड़ा ड्रॉडाउन अगेंस्ट मी नहीं होता, मैं उसका इनपुट चेंज नहीं कर रहा हूँ. उसमें मैं इतना माथा नहीं घटाता हूँ. जो स्ट्रेटजी चल रही है वो मैं चला रहा हूँ. आई एम पुटिंग द इनपुट्स, आई एम गेटिंग द आउटपुट. तो उसमें नियम ये होता है कि जब तक मेरा आउटपुट ड्रास्टिकली नेगेटिव नहीं हो रहा है कंपेयर टू माय पास्ट परफॉर्मेंस, मैं स्ट्रेटजी को टच नहीं कर रहा हूँ. और एक मेरा होता है डिस्क्रिशनरी स्ट्रेटजी, जो मैंने अभी आपको बताया कि कल मेरा व्यू है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेगेटिव होना चाहिए. तो मैं मॉर्निंग में ट्राई करूंगा कि ये नेगेटिव हो रहा है कि नहीं. अगर वो हो रहा है और मार्केट मेरे साथ जा रहा है, सो मार्केट मेरा व्यू को रिस्पेक्ट कर रहा है. सही है. आई थिंक आई वांट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम शिकांत जी एज वेल, क्योंकि आप इतने साल से मार्केट में हैं. क्या आप हर मार्केट कंडीशन के लिए नया स्ट्रेटजी बनाते हैं या एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी में थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसी पे ही अपना पूरा फोकस रखते हैं? तो देखिए विवेक जी, मुझे लगता है कि जो इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर फोकस करना काफ़ी ज़रूरी होता है. एक होता है कि अपने पास अपनी स्ट्रैटेजी होती है. मोस्टली मैं मेरे स्ट्रैटेजी को बड़ा चेंज नहीं करता हूँ, मैं उसी स्ट्रैटेजी के साथ जाता हूँ. मेरे कुछ मैंने थियरी बना के रखी है कि अगर इस पर्टिकुलर इवेंट में अगर ये पर्टिकुलर टाइप का अगर मार्केट है तो मैं ऐसे बिहेव करूँगा करके. सो एक मैंने बना के रखा हुआ है कि मैंने इस पर्टिकुलर मैनुअल को फॉलो करना है. बट समटाइम व्हाट हैपेंस कि कुछ बड़े इवेंट आते हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट आते हैं कि जिसके पीछे जो उसका आउटकम होता है वो कंप्लीटली कुछ अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस बार का जो ये पैंडेमिक था, फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे अगर आप देखें तो पैंडेमिक के बाद का जो मार्केट था वो इनफैक्ट काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करने लगा ऑन लार्ज कैप कंपनीज. तो हमें हमारा फोकस लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर ज़्यादा करना था. और उसके बाद अगर आप देखें तो अभी का ट्रेंड ऐसा है कि सबसे ज़्यादा फोकस, जैसे अभी चेतन भाई ने बताया कि अभी मार्केट रेंज बाउंड हो गया है. और वैल्यूएशंस में अगर देखा जाए तो मैं वैल्यूएशंस हमेशा ट्रैक करता हूँ और वैल्यूएशन बेसिस पे लार्ज कैप कंपनीज को इस मार्केट में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि यू कैन नॉट मेक मनी आउट ऑफ दैट. तो ऐसे मार्केट में आपको ये देखना है कि मार्केट वैल्यूएशन बेसिस पे एक पीक पे आ चुका है और ऐसे मार्केट में वही स्टॉक चलेंगे जहाँ पे कुछ स्टोरीज बन रही है, जैसे कि कोई केमिकल सेक्टर है
या तो अगर रिसेशन आ रहा है, तो रिसेशन में मैंने 20 साल के करियर में पढ़ा है कि जब भी रिसेशन आता है, या इनफैक्ट मैंने कई सारे इंटरव्यूज भी मैंने अटेंड किए हैं, और वहाँ पे जो लीडिंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो बताते हैं कि अगर रिसेशन आ रहा है तो आपको फार्मा के ऊपर फोकस करना है। एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब से फार्मा में एक रिवर्सल टर्न देखा मैंने टेक्निकल्स के ऊपर, तब से मैंने फार्मा को ट्रैक करना शुरुआत कर दिया। और सबसे सिंपल बात यही होती है कि जब समझ में नहीं आ रहा है कि सेक्टर में क्या हो रहा है लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है, तब आपको लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर फोकस करना है। तो ऐसे कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, वो आपको चेंज करने पड़ते हैं। सबसे अगर बड़ी बात अगर देखें तो ये जो अपना ये था, क्या बोलते हैं उसको, करेंसी डिमोनेटाइजेशन था, या तो अगर आप पकड़ लीजिए कि भी इस बार की जो इंटरेस्ट रेट साइकिल थी और इस बार का जो डॉलर इंडेक्स में जो स्ट्रेंथ आया है, आपने देखा होगा कि 1970 में ये डॉलर इंडेक्स 120 के करीब था, फिर 85 के आसपास ये गया था, उसके बाद 2001 में गया, और इस बार भी अभी आया है 120 के आसपास जा रहा है, ऑलमोस्ट जा चुका है लेकिन उसके आसपास का है। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो आईटी में वो परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आईटी में एक रैली हो चुकी है। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा पैसा पैंडेमिक के बाद अगर किसी सेक्टर में गया था तो वो आईटी और डिजिटल रिलेटेड कंपनीज में ही गया था, और इसी वजह से आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप इस बार भी अगर बिकॉज डॉलर ऊपर जा रहा है, बिकॉज करेंसी वीक हो रही है, मैं मेरा फोकस आईटी के ऊपर ही रखूंगा, तो वो स्ट्रेटेजी गलत होगी। ओके तो काफी सिंपल है, बट यस, मैं मेरे दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी में ज्यादा डिविएशन मत लाइए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, जैसे कि आप इधर जैसे कि मुक्ता है, या तो अभिजीत है, या तो चेतन है, अगर आप उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो आप उसको 100% फॉलो करो, बिकॉज दे नोज एग्जैक्टली, दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट सेवरल ईयर्स। आप उनको फॉलो करो। या तो अगर आपके पास अगर आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है तो आप उसमें बड़ा डिविएशन मत करो, और आप थोड़ा सा इधर उधर का इनपुट लेके थोड़ा सा चेंज करके आप आपके ट्रेडिंग को चला सकते हो या इन्वेस्टमेंट्स को चला सकते हो। सही है। मैं अपनी तरफ से एक इनपुट देता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि मैं बहुत काम करता हूँ, तो एक छोटा सा इनपुट इफ इट इज रेलिवेंट फॉर एवरीवन। मैंने देखा हर 2 साल में ना कोई फंडामेंटल रीजन से कोई ना कोई सेक्टर जो है इमर्ज हो जाता है। ये मोटा मोटी एक ट्रेंड है ही। एंड रीजन कुछ भी हो सकता है, वो डॉलर का मूवमेंट हो सकता है, वो लड़ाई हो सकती है, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो सडनली एक सेक्टर इमर्ज हो जाता है। तो अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करे स्टॉक स्पेसिफिक, और ये स्विंग ट्रेडर के लिए ज्यादा रिलेवेंट है, इन्वेस्टर वाली डिस्कशन तो खैर बाद में कभी मौका मिलेगा तो हम करेंगे। हम वो टेक्नो फंडा समिट में संडे में इन्वेस्टमेंट की बात ही करने वाले हैं, बिकॉज कुछ अजब अलग ही लेवल के लोग इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड डिस्कशन उस दिन करेंगे। पर जहाँ ट्रेडिंग की बात होती है, टेक्निकल की बात होती है, स्विंग, वहां पर मैंने देखा है कि अगर आप उन्हीं सेक्टर्स पे फोकस कर लेना जो सेक्टर उस फंडामेंटल शिफ्ट के कारण इंपैक्ट होते हैं, चाहे वो तेजी का इंपैक्ट है चाहे मंदी का इंपैक्ट है, अगर वही 3-4 सेक्टर पे कोई फोकस करे तो आराम से वहां से स्टॉक्स मिलते हैं जहां पर आप आराम से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इतना बड़ा यूनिवर्स जो है ना 5,000 स्टॉक्स का, उतना देखने का दरकार नहीं है। वो 500 NSE 500 स्टॉक्स में से ही आपको 4-5 सेक्टर मिल जाएंगे जो कोई ना कोई रीजन से अभी या तो पैसा उनमें घुस रहा है या पैसा निकल रहा है। उतना ही हम कर लें तो स्विंग ट्रेडर के लिए इट इज मोर देन सफिशिएंट। दैट इज व्हाट हैज बीन माय एक्सपीरियंस। So to ask one question to all four of you, and you can actually answer by pointing your finger, which I'll highlight कि आपको क्या बोलना है। आप फंडामेंटल को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं ट्रेडिंग जर्नी के अंदर में? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज लोग बोलना चाहते हैं कि मैं देता हूं इंपॉर्टेंस, बट फाइनली जब चार्ट खुल जाता है तो फंडामेंटल पीछे रह जाता है। तो आई वांट यू टू बी वेरी ऑनेस्ट था, आप फंडामेंटल को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में? पहला ऑप्शन 25%, मतलब 25% फंडामेंटल, 75% टेक्निकल। दूसरा ऑप्शन 50%, तीसरा ऑप्शन 75%। आप फिंगर से दिखा सकते हैं 1, 2 और 3। Zero for me. Zero? See, I have a very, Same here, very, sir. Zero. very different approach in this case. So That's 0% okay. I mean, for zero is also trading, an option. Okay, I'm 100% for sorry. investing. मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया, आई एम सॉरी अबाउट इट। सो या 0%। ओके, तो ये देखिए टेक्नो फंडा कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पर दो लोग हैं जो ट्रेडर हैं और वो बोलते हैं सर मेरे को फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज भाव भगवान थे, भाव में सब कुछ है। क्यों? बिल्कुल। That's the ultimate.
सही है, एक काम करते हैं, एक बार ऑडियंस से भी ये ओपिनियन ले लेते हैं। ऑडियंस आप बताइए 0%, 25%, 50% या 75%? 100% तो होगा नहीं, बिकॉज आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो 100% फंडामेंटल से तो नहीं कर सकते। तो ऑडियंस आप बताइए आपका क्या परसेंटेज है। चलिए जब तक हमारे पास आंसर आते हैं अपने एक और क्वेश्चन पे। अच्छा 0%, ये क्या बात हो गई? अभिजीत सर आपके फैन बहुत है यहाँ पे लगता है, और मुक्ता जी के भी। सही है, फैंटास्टिक। चलिए एक थोड़ा डिस्कशन एक घुमाते हैं। श्रीकांत सर, जो हम लोग उस समय आपसे बात कर रहे थे उससे रिलेटेड ही है थोड़ा सा क्वेश्चन। मोमेंटम ट्रेडिंग और ट्रेंड ट्रेडिंग, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, या दोनों एक ही चीज है, बस हम लोग वर्ड अलग अलग यूज कर रहे हैं? श्रीकांत सर, ओके, मोमेंटम ट्रेडिंग और ट्रेंड ट्रेडिंग, ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, या बात एक ही है, खाली वर्ड अलग अलग यूज कर लिए? देखिए मुझे लगता है कि मोमेंटम ट्रेडिंग और ट्रेंड ट्रेडिंग ये दो अलग बातें हैं। अगर मोमेंटम को अगर मुझे राइड करना है तो उस पर्टिकुलर मोमेंटम में कौन से सेक्टर्स आ रहे हैं वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ट्रेंड एक ऐसा होता है कि जहाँ पे एक ट्रेंड बना होता है और वो कई महीनों तक चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आईटी में एक बेरिशनेस चल रहा है, या फार्मा में एक अच्छा ट्रेंड डेवलप हुआ है, बट केमिकल्स में एक मोमेंटम बना हुआ है। तो जैसे जैसे न्यूज़ फ्लो आते हैं वैसे उस पर्टिकुलर सेक्टर में हम अप एंड डाउन की एक्टिविटी देखते हैं। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्रेंड फॉलोअर अगर हूँ तो मुझे उस पर्टिकुलर सेक्टर के फंडामेंटल्स का थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं आपके प्रीवियस वाले क्वेश्चन को अगर आंसर करूँ तो मैं ये कहूँगा कि नो डाउट ट्रेडर को ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, प्राइस फॉलो करना चाहिए, भाव इज भगवान इज परफेक्ट। बट अगर आपके रिटर्न्स को अगर आपको मैक्सिमाइज अगर करना है तो आपको फंडामेंटल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। और मैं वापस एक बार यही फार्मा के सेक्टर के बारे में बात करूंगा कि अगर मुझे पता है कि रिसेशन के ऊपर ही सब काम हो रहा है, कि रिसेशन आना चाहिए तभी जाके इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, तो सबसे पहले बड़ा इन्वेस्टमेंट जो जो सेक्टर जहाँ पे बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, तो फार्मा में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, क्योंकि इस बार आईटी में इन्वेस्टमेंट्स आने वाले नहीं है। तो इसी वजह से अगर मैंने फार्मा अगर 900 रुपए में लिया है तो मैं 1200 रुपए तक ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो जहाँ पे मैक्सिमम टारगेट्स हो, जैसे अभी 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 रिसेंटली आपने देखा होगा कि कोटक का तो बहुत पहले रिपोर्ट आ चुका है केमिकल सेक्टर के ऊपर, लेकिन मॉर्गन का भी अभी रिपोर्ट आ रहा है। और जैसे जैसे ये सब स्टॉक्स एक ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, हम उनको राइड करने की ट्राई करेंगे। तो अगर आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है आप फंडामेंटल्स का नॉलेज रखिए। बट अगर आपको बहुत ही छोटे छोटे ट्रेड्स लेते लेते आपको बहुत सारा अच्छा पैसा बनाना है, देन ऑल्सो इट इज फाइन, आप प्राइस के ऊपर बिलीव कर सकते हो। Okay, fair point. Abhijit, you made your reaction was spontaneous after I asked this question. What's your answer? Yeah, it's very obvious because both of them are very distinctly different things. When we talk about trend, we are talking about the direction of the price. So let's say you're driving your car, which way are you going? I'm going towards north. At what pace are you going? Are you going at 35 kmph or are you going at 135 kmph? So the direction is about, or the trend is about the direction of the price. We can have a nice uptrend, downtrend, or choppy sideways market. And जब हम underlying momentum का बात करते हैं, that if it is going up, then what is the rate of acceleration at which it is going up? Let's say you may find charts which are going up with at a very high pace, and then there'll be few stocks which are going up, but the rate of going up is really slow. Understanding the trend is very important if you are slightly medium to long term. Then you will get to ride the trend. A trend बनेगा तभी तो आप trend follow करेंगे, right? That's why if you test any trend following system, most of the time आपको strike rate 30-40% से ज़्यादा मिलेगा नहीं, because their average winners are 3, 4, 10 times than their average losers. They will lose 70 times, but they will make up because of the 30 times. Markets don't trend. When it comes to underlying momentum of the stock, that it is going up very fast or coming down very fast, this is where the short-term trader comes into play. So guys who are listening to us, agar aapka style of trading is short-term, intraday, 1 or 2 days, trend may not be so important. But the importance is if I expect that this move will happen in a fast time, and then you play the momentum and you get out of the trade.
So distinctly different aspect. And when I take the trainings, I kind of categorize them in terms of the underlying elements: element of trend, element of volatility, element of momentum, element of relative strength, element of sentiment. So सारे elements का एक मिली भगत will help you to analyze the charts better. सही है fantastic. Now I want to ask last question to all four of you, and I want quick answers. The exit, दो तरह का एग्जिट का बात करते हैं, एक ट्रेड लेवल पे एग्जिट और एक ट्रेडिंग से एग्जिट. ओके, बहुत भारी क्वेश्चन है बाय द वे, बिकॉज ये सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं देना चाहता है. इट्स अ वेरी ट्रेड लेवल पे एग्जिट तो चलो स्टॉप लॉस के नाम पे आप बोल दोगे, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट कर दो, बड़ा डिफिकल्ट नहीं हुआ आंसर, बट आई स्टिल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर दैट क्वेश्चन योर वे. बट करियर लेवल पे कि ट्रेडिंग से ही एग्जिट कर दो यार, तो कब इंसान को फाइनली वो ट्रिगर दबा देना चाहिए, जो रेड ट्रिगर होता है ना, जो लिफ्ट में होती है, रेड दबा दो बंद हो गया. तो पहला ट्रेड लेवल पे एग्जिट और दूसरा करियर लेवल पे एग्जिट. लेट्स स्टार्ट विद मुक्ता फर्स्ट ऑन दिस, ऑन द स्पॉटलाइट. आप म्यूट है मुक्ता. या सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे मैंने बोला कि पॉइंट एंड फिगर इज सच अ ब्यूटीफुल सिस्टम, इट्स एन ऑब्जेक्टिव सिस्टम. सो when I'm entering a trade, I know my exit door. जैसे हम थिएटर में जाते हैं और मूवी देखने के लिए वो एग्जिट डोर की जो हाईलाइटेड रहती है हमेशा, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी यू नो वेयर यू हैव टू एग्जिट. तो सिमिलरली अपनी ट्रेडिंग में भी वही फंडा यूज करती हूँ कि जैसे एंट्री करती हूँ वैसे ही तुरंत मेरा स्टॉप लॉस लग जाता है, यानी सिस्टम में लगा देती हूँ. तो आई नो कि मेरी ट्रेड भाई अभी सेफ है, मेरा डिफाइंड रिस्क जो है वो एनालाइज करके मेरी पोजीशन अभी मेरे कंट्रोल में है. सेकेंडली, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी ओपन पोजीशंस नहीं रखनी है, स्पेशली इन करंट सिनेरियो व्हेन वी हैव सो मेनी अप्स एंड डाउन्स गोइंग ऑन इन द मार्केट. एंड थर्डली, अफोर्डेबल ट्रेड्स होती है पॉइंट एंड फिगर में, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है. तो जिनकी पॉकेट साइज थोड़ी कम है, जिनका कैपिटल थोड़ा कम है, and still they want to be in market, so उनके लिए भी अलग अलग तरह के अफोर्डेबल स्टॉप लॉस रख के ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो सकते. ट्रेडिंग से एग्जिट तो मैं कभी कर ही नहीं सकती. once a trader is always a trader. market is so addictive, but yes, managing your risk, managing your money is most important, क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से ट्रेड करोगे. So, Yes. So money management is the most important skill that you need to acquire when you are trading. ओके, चलिए मैं इसको और ऑब्जेक्टिफाई कर देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, बिकॉज मुझे पता है इसका भी आंसर मुझे वेग मिलने वाला आप लोगों से. तो लेट मी ट्राई टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ यू. सो लोग कहते हैं ना नौकरी से आज़ादी, कि भाई नौकरी में हो तो उससे आज़ाद हो जाओ, ट्रेडिंग कर लो, ट्रेडिंग तेरा फुल टाइम ऑक्यूपेशन बन जाएगा. तो ये अभी बहुत चला हुआ है, बहुत लोग इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, विच इज ओके, एवरीवन हैव देयर ओन कम्युनिकेशन. बट ट्रेडिंग से आज़ादी क्यों नहीं बात कर रहे लोग? ऐसे कई लोग हैं जो फंसे हुए हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने फैमिली का नेटवर्थ भी दाव पे लगा रखा है. उनको भी तो बताना पड़ेगा ना कि भैया आपको छोड़ना पड़ेगा ये, अगर आपसे नहीं हो रहा है. तो हाउ डू आई आइडेंटिफाई एंड ट्राई टू आंसर दिस ऑब्जेक्टिवली? हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि मुझसे नहीं हो पा रहा है? कुछ तो बेंचमार्किंग होगा. पैसा कैन नॉट बी द बेंचमार्क. मेरा पैसा खत्म हो गया तो मैं मान जा रहा हूँ कि मुझसे नहीं हो पा रहा है. कहीं तो कुछ तो फॉर्मूला होगा जो बताएगा मुझे कि मुझसे ना हो पा रहा है, मुझे हट जाना चाहिए अभी. मुक्ता. So I'll give you a live example. There's a friend of mine who is working in some nice bank, and परसों उनका फोन आया था मुझे और मुझे कह रहे थे मैं अब पूरा टाइम ट्रेडिंग करना चाहता हूँ. तो मैंने उनको बोला कि फेयर इनफ, आप ट्रेडिंग तो चालू कर दीजिए, उसमें कोई चल रहा है वैसे चलने दीजिए, लेकिन अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो तो पहली चीज आपको ये करनी है, सिंस यू आर अ ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, आपका 2 साल का जो कुछ आपका मंथली एक्सपेंसेस है, that money should be there safely in your kitty, and taking care of your insurances or your health and whatever expenses you will need over and above for next 2 years. Your money has to be properly assigned for your expenses and everything. That was one thing I told him. Secondly, मैंने उनको बोला
कि अगर आप करना भी चाहते हैं तभी भी योर मनी मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क दैट आपको इसमें फिनेस लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज नाउ योर इनकम विच वाज स्टेडीली कमिंग एवरी मंथ ऑन मंथ, जो सैलरी आ रही थी वो अभी स्टॉप हो जाएगी, तो एक थोड़ी वल्नरेबिलिटी आ जाती है। एकदम से ऐसा लगता है भाई हर महीने में 25 तारीख को जो सैलरी आ रही थी अकाउंट में वो आना बंद हो गया है, तो मुझे वो पैसा हर महीने अगर कलेक्ट करना है, जैसे समझो आपका 1 लाख रुपया महीने का एक्सपेंस है, तो मेरे पास 20 ट्रेडिंग सेशंस है, आई नीड टू डिवाइड दैट मनी एंड दैट मनी आई हैव टू अर्न एवरी डे फ्रॉम मार्केट। एक बार आपका वो पैसा आ गया ना, यू शुड क्लोज योर टर्मिनल एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months। ये अगर आप डिसिप्लिन से कर पाते हो, देन यू कैन क्विट योर जॉब एंड गेट इनटू ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन। अदरवाइज आपका जो जॉब चल रहा है उसको चलने दीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन अगर नहीं है ना मार्केट में तो मार्केट आपको फेंक देगा बाहर। सही है चेतन भाई। यस डेफिनेटली। सही है Vivek मुक्ता, bhai, थैंक यू चेतन भाई। see, very interesting. You have answered, Mukta ma'am. That was very well answered. Trading, trade ka exit, as rightly said, has to be decided before taking the trade. So your mental level, you should be ready that this is my risk. This is what I have to use to exit. Secondly, Vivek bhai, I want to give you a stats. 96 to 98% of the people fail as traders. ये एक रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट कर लेना बेटर है। क्यों फेल करते हैं? नॉट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजी। फेलियर का एक रीजन है जो अभी मुक्ता मैम ने बोला, बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन, which makes you falter on your discipline. And as the second part is, because of the discipline falteration, your money management goes for a toss. तो स्ट्रैटेजी आप किसी का भी, मार्क सर का भी अगर आप दे दोगे किसी को, लेकिन इसका बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन ज्यादा रह गया, वो सक्सीड नहीं कर पाएगा। So my simple funda is, coming from a job into the field of trading, I would say it's not about making money. It's not at all about making money, is where I have to cut my losses and losses. So jab as a trader, when I start taking those small loss and not let it go into a big loss, I have closed the first part of being a big loss making trader. Okay. Once I've done that, now my job is to gain experience. जैसा श्रीकांत भाई से समझ आया फार्मा सेक्टर, सो बात मेरे एक अजीज दोस्त प्रेमल भाई है, वो पहला चीज ही बोलते हैं कि जहाँ मंदी आई वहाँ पहले फार्मा का टिक खोजो, कौन सा सेक्टर भागेगा। सो दीज आर ऑल स्मॉल थिंग्स विच यू लर्न नगेट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। सो यू हैव टू गेन द एक्सपीरियंस, बैलेंस इट विथ योर ट्रेडिंग, एंड दैट पोजिशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल विल कम देयर। Thirdly, Vivek bhai, ऐसा जरूरी नहीं है, ट्रेडिंग बहुत वास्ट फील्ड है। यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्कैल्पिंग के बाद एक डे ट्रेडिंग, टाइम फ्रेम के साथ स्विंग ट्रेडिंग, फिर मोमेंटम ट्रेडिंग, एंड देन देयर इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। काफी बड़ा, इट माइट बी दैट द बेस्ट ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड हैव फेल्ड एज डे ट्रेडर्स, but they've really succeeded themselves as swing traders. So what is important is, even if I want to put a full stop, पहला चीज ये इम्पोर्टेंट क्या है कि मेरे लिए कौन सा फील्ड है ट्रेडिंग में जहां पे मैं सक्सेसफुल हो सकूं। हाँ, जब आपने एक टाइम स्लॉट दे दिया कि भाई मेरे को 2 साल देना है, 3 साल देना है, आफ्टर दैट इफ यू स्टिल फील दैट योर पोटेंशियल इज नॉट देयर, व्हाई? बिकॉज द प्रॉब्लम विवेक भाई इज, ट्रेडिंग बहुत अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन जब आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया उसके बाद, इट इज समथिंग कॉल्ड अ टीक प्लांटेशन। वो टीक क्या है? जब आप ग्रो कर रहे हैं तब कोई रिटर्न्स नहीं है, यू फील दैट यू आर मेकिंग अ मेस ऑफ योर लाइफ, बट वंस यू गेट दैट एक्सपीरियंस एंड द एबिलिटी ऑफ लॉसेस, दैट इज वेयर यू स्टार्ट मैच्योरिंग एज अ स्टेज 4 ट्रेडर। आपका
लॉस मेकिंग ट्रेड्स बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स कम है, लेकिन काफ़ी बड़ा प्रॉफिट्स आ रहा है. So probably you might have seen that in your portfolio. I've also seen that in other people's portfolio, that only that 20% of your stocks are giving 80% of your profits. बाकी सब Yes, yes, balance out हो जा रहा है. yes, yes. So that's with the trader also. That वो उसका 20% trades ही उसका major trades देता है. And most of Correct. it what happens, बट वो हम पता लोग नहीं है जब ना लॉस कौन सा करके उस 20 दिन में आएगा. हम लोग survive नहीं करते. ट्रू ट्रू. वो और ये survive पता भी नहीं करना रहता ना वो कौन सा 20 ट्रेड्स है जो 80% प्रॉफिट देगा. वो पता चल करना तो जाएगा सभी विवेक को. भाई. बहुत बहुत सिंपल है, पता चल जाएगा. क्योंकि आप जब हाँ पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक लगाते हो ना, हाँ. तो आप देखोगे कि वही 2 स्टॉक जो है आपका पूरा पोर्टफोलियो का 60-70% प्रॉफिट दे रहा है. लेकिन नहीं प्रॉब्लम नहीं, क्या दैट होता है इज कि ट्रू. आप उसमें बुक कर लेते हो. हाँ, दैट इज राइट. अभी यही मैं कह रहा हूँ कि आपको पता नहीं है तो बेसिकली आपको राइड करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा. करेक्ट. सो ये स्टाइल साइकोलॉजी और सर्वाइवल से आती है. So you have to survive. In order to survive, basically, you don't think about profits. You think how early I can get out with a small loss. And once you start doing that, once you get into profit, so मैं फुटबॉल का analogy देता हूँ. You start with a defensive mindset, हाँ. and when you are in profits, you go with an attacking mindset. Right? So this is what I teach my students. Start with defense and go with attack. सही है. So that is the funda for being a successful trader. फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट. आप बंगाल से हैं तो फुटबॉल का एनालॉजी देंगे, पता था मुझे. Shikant sir, so much of experience you have seen people booming and people getting bust. So I want to take your opinion कि कब ट्रिगर दबा देना चाहिए. देखिए, अगर मैं बहुत ही सिंपल और शॉर्ट अगर वर्ड में कहूँगा तो यही कहूँगा कि जब तक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी डिफाइन नहीं हो रही है तब तक हमें लगता है कि अगर मुझे लग रहा है कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ लेकिन मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ही डिफाइन नहीं हो रही है, मैं कभी और किसी स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहा हूँ, कभी मैं बिकॉज ऑफ मार्केट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस पे या इवेंट्स के बेसिस में मैं काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ एंड देन आई फेल्स टू एग्जीक्यूट दैट स्ट्रैटेजी. अगर अपना बिहेवियर अगर बन रहा है और अगर मेरे से मनी मैनेजमेंट तो इट्स ओके, लाइक ऑलवेज मैं मनी मैनेजमेंट रखता ही हूँ, बट अगर आपकी स्ट्रैटेजी अगर आ जाती है तो ऑटोमेटिकली मनी मैनेजमेंट आ जाता है. लेकिन आप उस स्ट्रैटेजी को अगर डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो फिर मुझे लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग से एग्जिट कर लेना चाहिए, अदरवाइज लॉसेस बढ़ते जाएंगे और आप इवेंचुअली, मुझे लगता है कि मीन्स एक बार अगर मार्केट छोड़ दिया तो उसमें वापस रिकनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. अगर आपको ट्रेडिंग करियर अगर स्टार्ट करना है, आप 10 बार सोचिए, 10 एक्सपीरियंस लोगों के इंटरव्यूज को सुनिए. स्टॉक एज में आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा दिमाग है. पॉइंट एंड फिगर आई एम टेलिंग यू विवेक जी, मेरा भी काफी फेवरेट एक क्या बोल सकता हूँ मैं कि थियरी है, बट उतना मुझे नहीं समझ में आता ऑनेस्टली. मैं बहुत बार उसको ट्राई करने की कोशिश करने की ट्राई करता हूँ कि मैं इसे इंप्लीमेंट करूँ मेरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में, बट मेरे से नहीं होता है. तो मैं इनके लेक्चर्स डेफिनेटली सुनूंगा और मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा कि ये एग्जैक्टली कैसे उसको देखते हैं. तो जो भी हमारे क्लब मेंबर्स हैं, मैं कहूँगा बार बार आप इंटरव्यूज को देखें, बार बार आप समझिए कि आपकी खुद की बॉडी लैंग्वेज, आपका खुद का माइंडसेट कौन से एनालिस्ट के साथ जा रहा है. कई बार ऐसे होता है कि टीवी पे इंटरव्यूज आते हैं, शंकर शर्मा का इंटरव्यू अलग होता है, राकेश का अलग होता है, करेक्ट, मार्क फेबर का अलग होता है, वॉरेन बफेट का अलग होता है. तो आपका आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपका माइंडसेट किसके साथ मैच होता है, यू डिसाइड दैट. आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिसाइडेड है कि नहीं है, डिफाइंड है कि नहीं है. अगर ये नहीं है, आप ट्रेडिंग में से एग्जिट कर लीजिए. सही है. Great suggestion. And Abhijit da, before we close this question, you are a very straightforward, ruthless person when it comes to saying people on the face कि तुझसे ना होगा, तू बंद कर. Tell it today. बोल डालो. See, first, if you have quit trading, then you were not a trader in the first place, because once a trader, always a trader. So if you're thinking of quitting, then आपके plan of action में कुछ गलती है. Now, I've been training for almost 18 years now. You know the kind of people that we have managed to train in our AST program, and I've heard their stories. सबका एक individual, unique story है.
And no matter, I will just divert a little bit from what Shrikant shared with us. If I even listen to 10 videos, my story is my story. You understand? I am not that guy. So I have to build my own road. I have to build my own path. I have to Yeah. create my own route. Yes, I'll listen to them. I'll understand them. But I will not be able to control C, control V and make money out of it. So whenever we take the trainings, I take a small part about the psychology of the market or psychology of the traders. I think the important word is responsibility. ये जो नौकरी से आज़ादी and getting into trading, they are all of the mindset of quitting the job and sitting in your shorts and trading and making money. If you Yeah. talk to a trader, a sincere, serious trader, वो एक नौकरी वाले से probably 3 गुना ज़्यादा काम करता है. वो एक नौकरी वाले से probably 3 गुना ज़्यादा taxed है because the market is right in here running all the time. आपको नींद में भी चार्ज दिखेगा. अगर नहीं दिख रहा है तो वो पैशन नहीं है. Right? Absolutely. So a Naukri guy is 9 to 5, but he does not like the day-to-day role, run of the mill. This is a human thing. This is not a Naukri or a job. आप अगर एक चीज Monday to Friday, year after year करोगे, no matter how much you get paid, the person inside wants to be free somehow. And doing trading is like a form of freedom. But अगर आप घुस गए, you'll see कि mentally you are taxed all the time. Are you enjoying it? If I'm enjoying it, then I can work 18 hours a day and I can be fresh. But if I'm not enjoying it, I will not even like 4 hours of it. The problem with trading, एक दिन पिटाई मिलता है, दूसरा दिन profit मिलता है. Job is you go, you see your boss, you do the job, you come back Monday. But over here it's highs and lows, just like life, just like life. So what my view is very unique in this case, that I say that you need to be a responsible person. जो आप ले रहे हो, the decision of quitting a job and starting trading, do you have any responsibility with you behind you, family or anything? Keep aside 2 years, 3 years, जितना ज़्यादा हो सके. You cannot look at trading, the money out of trading to pay your bills. जब तक वो दिमाग में है, trading will not work, hands down. Because bills आपको pay करना है, the market doesn't care to pay your bills, right? Yeah. If you're free and you can manage the same standard of living for the next, let's say, 36 months or 24 months, then you'll trade with much more ease. You'll be flirting with the market. You'll be fine. And somehow you will find your route. Videos देख के, course करके, सीख के, पिटाई लेके, and somehow एक कहीं ना कहीं से एक path निकल आएगा 100%. Guarantee. Responsibility is very, very important. Take responsibility of your trade. Loss होता है, market पे blame. मैनेजर फंड मैनेजर पे ब्लेम अगर लॉस हो गया, मार्केट पे ब्लेम, यूक्रेन पे ब्लेम. They are all doing their stuff. You have to do your stuff. So maturity, responsibility, making a plan, stick to the plan, and try not to complain. I've seen that, especially those who are young. Sir, मैंने ये किया था, ये हो गया, वो हो गया. The markets, just like life, makes a man out of you. So just look at the mirror and figure out, are you man enough or not? It takes time. And I think everyone has a very unique story. Very unique story. So one size fits all, it's not really. But कुछ general rules है. That is, don't lose. I will 100% go with what Chetan Bhai shared with us. Ed Secotta also quoted this long time back. I had read. Learn to cut your losses small. The quicker you learn this, and ये अपने mindset से ठीक opposite है. No one likes to take losses. You have to learn and enjoy to take losses. जब वो छोटे है, वरना one loss will be the mother of all losses. It will wipe off your portfolio. And then you will say trading मेरा बस का काम नहीं है, and you will quit. And that's how the others make money. You will quit, and that's how the trend followers like Mukta will make a lot of money because you've made a lot of losses. True, absolutely. In fact, just to conclude this, and I I thoroughly enjoyed this part of the conversation where finally the conclusion is I got to attend a session where PNG director India, he was there. I think Mr. Subhakshu Bakchi was the name of the director, and he was asked this question that you stayed in this company for 45 years. What made you stay in a company for 45 years? तो उनका जवाब था, every morning I used to get up and I used to ask myself this question कि आज ऑफिस जाने का मन है क्या? And if I used to get the answer हाँ चलते हैं ना, I used to go to office.
The day I got an answer within कि यार ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, उस दिन मैंने रिजाइन कर दिया. So that whole thought ki, are you enjoying? Are you getting that kick? Are you really getting that high point when you are facing the market every day? That should be good enough reason for you to continue. And the moment you feel कि मैं थक गया हूँ, मुझसे ना हो पाएगा, then better quit. क्यों अभिजीत दा? Have I summarized you properly? Yes, yes, of course. You know me much, Thank you. much well. So yes. Thank you. So, guys, this is it from our side. Before I close, I want to share this with you that why are we doing this right now? Why conversation is happening? There is a great community which we have developed, and the community is called StockEdge Club. Uh, in this StockEdge platform, we have all these fellows who are sharing their ideas. It's a private community, premium community, where more than 10,000 members are there. Kotak is also there, and Shikant sir and his team has been constantly giving us stock ideas, news, learnings, lot of things which is relevant for traders and investors like us. There are clubs like fundamental, technical. There are expert clubs, and all these experts who are SEBI registered people, they are part of the expert club, and they're sharing a lot of ideas along with learnings. As part of StockEdge Club, we are conducting this free StockEdge Techno-Funda Summit. It's a free summit for StockEdge Club members. So people who are not yet part of club, you better join club, because not just these 2 days, it's a year-round learnings and earnings which you get from not just them, the experts, but also our in-house team of 20 plus analysts who are constantly there to make sure that your learning of financial market, this entire journey of trading or investing is taken care of. So if you're not part of StockEdge Club, become part of StockEdge Club today. And if you're already part of StockEdge Club, you don't have to worry. You will get the email from our team, and you can join these 2 days without any cost. We did the same thing in July. We are doing this again in October, and we'll keep on doing this as part of our endeavor to empower all the club members, because they are serious about their life in markets, and we really want to work hard for people who are serious about themselves. By the way, this is my birthday week. It started from Dashera, the Hindi birthday, and it's going to be there till another 3 days. So I celebrate a birthday week because मुझे मौका मिल गया, मैं हिंदी भी कर लेता हूँ, इंग्लिश वाले भी कर लेता हूँ. So I'm going to give you guys, if you take an annual membership of StockEdge Club, you can use my coupon code VIV30, VIV30, and it's a small thing from my side. You can reduce your cost, and you can take decision faster to become part of this amazing family. I don't call it club, I call it a family of people who are connected with each other, and we all have common objective of learning and earning from market. So do take advantage of VIV30, which is part of the annual plan, not the monthly plan. If you want to just try this out, take a monthly plan and try and see what we are doing. I'm sure you'll find value in this. Okay, thank you so much, all four of you. Very excited as always to see you guys, and looking forward to more such interaction. Thank you. Thank you, Mukta. Thank you, Abhijit Da, Shikant sir, and Chetan Bhai. Thank you so much. Take care, please. Great. Thank you. Bye. चलिए दोस्तों, बाय बाय. मिलते हैं फिर कभी मौका मिलेगा, फिर करेंगे लाइव सेशन और कुछ नॉलेज आपके साथ कंटिन्यू ऐसे ही शेयर करेंगे. बाय बाय. प्लीज टेक केयर.